Welcome children. Let's continue with our chapter 14 of geography. And we had in the previous chapter done till Peninsular Plateau, which we said that is as such divided into two parts, Malwa Plateau and Deccan Plateau. And this Peninsular Plateau you already know that is the inverted triangle, that is the south of India, and that is known as the oldest region of our country. It is about average height 600 to 900 meters, and slope is in the northern part towards northeast, which is very clear, evident matlab clear from the flow of Chambal Son and Damodar river. Matlab ki, just have a look over here. This is termed as, once again let me tell you, is called as Peninsular Plateau. अभी Peninsular Plateau का जो northern section है, right? दिस इन्वर्टेड ट्रायंगल का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे जो रिवर्स है उसकी फ्लो इट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, मतलब इट गोज टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. तो स्लोप यहाँ का नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो जो रिवर्स है वहाँ पे वो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही स्लोप है, तो वहाँ पे फ्लो होगी एंड इट मर्जेस अप इनटू द बे ऑफ बंगाल. एंड द सर्दर्न पार्ट स्लोप्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, और जो ये सर्दर्न पोर्शन है ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेटो दैट इज टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट. राइट नाउ you can also see ahead that most of its area in south is called southern plateau, surrounded by sea on three sides, called also as peninsular plateau. So we either call it southern plateau or peninsular plateau. Now peninsular plateau is divided into two, Malwa and Deccan. So let's see now Malwa plateau. So as I told you in a previous lecture, could be asked as for your short note, very important, both Malwa and Deccan plateau. Now Malwa plateau, that is Aravalli range, is located to the northwest of Malwa plateau, and when you move from Ahmedabad towards जैसे राजस्थान में एंट्री लेते हो और अ पार्ट ऑफ बिफोर राजस्थान, मतलब गुजरात का एक सेक्शन, फिर आगे बढ़ो राजस्थान, यू गो टूवर्ड्स माउंट आबू, तो वो एक पूरा रेंज तुम देखोगे वहाँ पे, अरावली रेंज, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड इट इज सेड, एंड इट इज़ अ फोल्डेड माउंटेन. This we had done in the previous lecture. Mount Abu is a famous hill station of this particular range. Beautiful, pleasant. As I told you कि Mount Abu usually people go in summer तो तब तो pleasant है, but winter it is extremely beautiful and pleasant. Guru Shikhar is the highest peak over here, 1722 meters high. To the south of this region there are rivers Chambal and Betwa emerging from Vindhyachal, flows towards north and meets Yamuna, while sun it flows northwards and meets river Ganga. तो चंबल और बेटवा मिलेगी टू रिवर यमुना, वो भी नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही है, और सन रिवर ऑल्सो फ्लोज नॉर्थवर्ड बट इट गोज एंड मीट्स गंगा. अब तक तो शायद लर्न कर ही लिया होगा एज वी हैड डन दिस पार्ट. दिस जस्ट recap, a brush up of what we had done in the previous lecture, that last few part. It can be known from the direction of the river flow that the region slope northwards. The northeast part of the central upland is called Bundelkhand. Beside this, rivers Luni and Banas, they also originate in Aravalli range in northeast. But ये दो rivers हमने बताया था तुम्हें कि लूनी और बनास वैनिश हो जाती इन द रन ऑफ कच्छ, लेकिन साबरमती और माही मिलेगी गल्फ ऑफ खंभात में. And from flow of these rivers, it is very clear, means it can be ascertained that western part of Malwa plateau slopes towards southwest. Southwest मतलब कि towards your left hand side, towards Arabian Sea. Radmel Hills and Shillong plateau are a part of Chota Nagpur plateau, which includes Ranchi plateau. So very clear, you can see over here शिलोंग, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मेघालय. ये मेघालय प्लेटो नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स का एक पार्ट. देन यू कैन सी छोटा नागपुर प्लेटो, देन देर इज रांची प्लेटो, मालवा प्लेटो. यस, अब मैंने ये भी बताया था कि कोई तो एक पॉइंट पकड़ लो वे इट कैन वर्क एज अ हिंट फॉर यू टू फिल अप द मैप. एंड सो दिस इज योर गुजरात सेक्शन, तो उसके जो टॉप पोर्शन में जो आउटलाइन है वहाँ से
the moment this Gujarat border completes, you can, like, let me show you this border of Gujarat. यहाँ से now take a finger space this much as a one finger space, and then you can take the Malwa Plateau, right? Then this is whole your inverted triangular section, but उसके ऊपर का एक हिस्सा हम लेंगे, that is termed as Deccan Plateau, and this is your Seven Sisters का ये पूरा section, from here it goes till, तो ये part तुम्हारा होगा your Seven Sisters. Now this is not India, right? It is not a part of India. तो यहाँ पे जो मेघालय लोकेटेड है वहाँ पे मेघालय प्लेटो. Now let's move towards, as I told you, कि यहाँ पे तुम्हें बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाई देगा अबाउट व्हाट वी सॉ ऑन द प्रीवियस मैप. तो चलो फिर से ले लेते हैं. गुजरात की ये जो बॉर्डर है वहाँ से वन फिंगर स्पेस, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है हमारी, तो ये 1 or 1.5 फिंगर स्पेस यू कैन टेक मालवा प्लेटो. फिर ये हमने देखा, राइट, दिस वे टुक इट एज, ऐसे ड्रॉ किया था, दैट इज़ योर महाराष्ट्र प्लेटो, सर्दर्न प्लेटो, डेक्कन प्लेटो. तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ था, वी विल ऑलवेज टेक इट एज अ डेक्कन प्लेटो, राइट. You can see clearly over here. Then we have over here this section हमने लिया था मेघालय का एक पार्ट. This whole is Seven Sister. तो Seven Sister का ये जो पार्ट है, but exactly above Bangladesh, right? That will be considered as your Shillong or Meghalaya Plateau. Now Deccan Plateau. अब Deccan Plateau, also a very important short note. It is located to the south of Satpura, Mahadev and Michael ranges, all like in the form of MCQ you will have to learn. The Deccan Plateau is located to the dash of or to the south of dash dash and dash ranges. Ranges मतलब the mountains. तो सतपुड़ा, महादेव और माइकल रेंजेस के साउथ में Deccan Plateau होगा, which are located to the south of Malwa Plateau. So once again, right, you can see Deccan Plateau will be always to the south of Malwa Plateau. मतलब Malwa Plateau उसके साउथ में होगा Deccan Plateau. Clear? Now, the northwest part of this plateau is composed or made up of lava deposits. तो ज़्यादातर यहाँ पे lava deposits होंगे. On the west side, its border is demarcated by Western Ghat. मतलब west मतलब your लेफ्ट या दिस लेफ्ट हैंड साइड. तो जब तुम मैप की तरफ देखोगे तो तुम्हारा जो लेफ्ट साइड होगा मैप पे, राइट, वहाँ पे बॉर्डर जो है ऑन द वेस्टर्न साइड, बॉर्डर इज डिमार्केटेड बाय वेस्टर्न घाट विच रन्स नॉर्थ साउथ अलॉन्ग द अरेबियन सी कोस्ट. इट हैज सेवरल लोकल नेम. उसको हम जैसे कहेंगे, महाराष्ट्र में हम कहते हैं और कर्नाटक में सह्याद्री कहते हैं, नीलगिरी इन तमिलनाडु, अनायमलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. तो अलग अलग स्टेट में इस रेंज का नाम अलग होगा. समवेयर वी कॉल इट सह्याद्री माउंटेन, समवेयर नीलगिरी, समवेयर अनामलाई, समवेयर कार्डमम, एंड द सर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज मोर लॉफ्टी, मतलब ह्यूज. जनरली एवरेज हाइट ऑफ डेक्कन प्लेटो इज अबाउट 900 to 1000 meter. So this you will have to again learn that what is the average height of Deccan Plateau. But at a few places it is more than 900. Then there are few isolated hills. Isolated hills मतलब कहीं कहीं पे अकेले खड़े हैं ये hills, having more than 900 meters of height from the eastern boundary of this plateau. So they are called Eastern Ghat. So there is Western Ghat and then there is Eastern Ghat. Now this whole portion we call it Western Ghat, and here this part we call it Eastern Ghat, right? And it has a general slope towards southeast which is clear from the flow of the rivers. अब जब भी rivers अगर east की तरफ flow हो रही है, मतलब तुम्हारे right hand side, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ का slope east की तरफ है, right? तो रिवर के फ्लो के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ का स्लोप किस ओर जा रहा है.
and except rivers Narmada and Tapi. Very important, very important. You will have to learn this, that which two rivers they are flowing westward. मतलब सिर्फ दो रिवर्स ऐसी हैं जो तुम्हारे वेस्ट मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ फ्लो होगी मैप पे, एंड दैट इज इट गोज एंड मर्जेस अप इन दी अरेबियन सी. बाकी की रिवर्स हमेशा ईस्टवर्ड जा रही है, मतलब तुम्हारे राइट हैंड साइड, एंड इट मीन्स बे ऑफ बंगाल. अभी मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स उनका फ्लो ईस्ट की तरफ है, तो वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होगी. सिर्फ दो रिवर्स ऐसी है जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड हैं, दैट इज इट फ्लोज टूवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि उन दोनों का फ्लो जाके मर्ज अप हो रहा है अरेबियन सी में, राइट. दैट इज नर्मदा एंड तापी. यू विल हैव टू लर्न इट परफेक्टली. नाउ द नेक्स्ट, कोस्टल प्लेन. नाउ पेनिनसुलर प्लेटो इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अ नैरो बेल्ट ऑफ प्लेन फ्रॉम कच्छ टू उड़ीसा. कच्छ से उड़ीसा तक एक नैरो बेल्ट है, वन वेरी प्लेन रीजन का, राइट. तो पूरा हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटो है, इट इज सराउंडेड बाय अ नैरो बेल्ट. इट इज डिवाइडेड इनटू योर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट. जैसे हमने देखा वेस्टर्न घाट और हमने देखा ईस्टर्न घाट, राइट. वैसे ही वेस्ट कोस्ट दरिया किनारे और एक है ईस्ट कोस्ट. वेस्ट कोस्ट प्लेन स्प्रेड्स फ्रॉम गुजरात टू केरला. अब गुजरात तो अभी अभी मैंने बताया तुम्हें मैप पे कहाँ पे है गुजरात, और ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए कि इंडिया के मैप पे गुजरात कहाँ पे लोकेटेड है. नॉट ओनली गुजरात, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ इट. यू शुड नो ईच एंड एवरी स्टेट और उनका लोकेशन कहाँ पे है, राइट. विथ नेम्स यू हैव टू लर्न इट. तो अभी भी मैं कहती हूँ प्लीज बी वेरी परफेक्ट विथ योर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट मैप, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. where I'll be showing you how to fill up the कि कहाँ पे रेड सॉइल है, कहाँ पे ब्लैक सॉइल, कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट लोकेटेड है, एंड व्हाट इज वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. लेकिन इसके पहले आई गिव यू स्टिल बाय एंड ऑफ दिस वीक टिल वी कंप्लीट दिस चैप्टर कि स्टेट मैप परफेक्ट कर लेना, राइट. अब वेस्ट कोस्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो गुजरात स्टेट से लेके केरला तक, दैट इज स्टिल द साउथ ऑफ इंडिया. एक्सेप्ट इन गुजरात प्लेन इज मोस्टली नैरो. मतलब कि गुजरात में ये प्लेन एरिया हमारा थोड़ा ब्रॉड है, बाकी जैसे इट गोज डाउन इट बिकम्स नैरो एंड इट्स वेरी मच अनड्यूलेटिंग. अनड्यूलेटिंग मीन्स अप एंड डाउन, इट्स नॉट वेरी फ्लैट, इट्स अनड्यूलेटिंग. जैसे हम कहते हैं ना उबड़ खाबड़ रास्ता, बट नॉट टू मच ऑफ. जब हम उस रास्ते से जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा. इट्स फ्रॉम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू we say when you compare to the other plain region, ये थोड़ा undulated है, and it is called as Malabar coast to the south of Goa. यहाँ पे भी अलग अलग नाम दिए हैं, तो इसे हम कहेंगे मलाबार कोस्ट जब हम गोवा के साउथ की तरफ जा रहे हैं. वेस्ट कोस्ट की और की जो रिवर्स हैं, they have developed creeks at their estuaries. Most of these creeks are submerged valleys under river water. तो ज़्यादातर ये जो क्रीक डेवलप हुई हैं यहाँ पे वेस्ट कोस्ट रिवर्स में, दे आर द वैलीज विच ऑलरेडी सबमर्ज्ड अंडर द रिवर वाटर. These are formed due to the emergence of seashore. It provides favorable condition for fishery. यहाँ पे फिशरी ज़्यादा होती है. यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, जैसे मुंबई, मार्मगोवा. तो वेस्ट कोस्ट के पोर्ट फेमस पोर्ट्स हैं मुंबई और मार्मगोवा. बैक वाटर्स हैव डेवलप अलॉन्ग द सर्दर्न कोस्ट ऑफ केरला. इफ़ यू माइट हैव गॉन टू केरला, कई लोग गए हैं, कई बच्चे हमारे गए हैं केरला, एंड आई नो इट्स अ वेरी कॉमन प्लेस वे वेकेशन में चलो भाई केरला जाते हैं. तो हर एक जगह को हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं. कई बार केरला जाते हो, कई बार कर्नाटका, तमिलनाडु या नॉर्थ में उड़ीसा, कैलकाटा, तो अलग अलग जगह पे. तो केरला काफ़ी बच्चे गए हैं. केरला में बैक वाटर में भी गए हो, जहाँ पे यू नो लाइक ईदर होल डे एंड होल नाइट हाउस बोट में रहने की एक सुविधा होती है, या यू ऑल्सो गो फॉर 4 to 5 hours यू नो बोटिंग एंड ऑल, लाइक ए स्मॉल हाउस बोट जैसा. तो ये बैक वाटर इज एक्चुअली वॉट, दरिया का पानी जो कहीं पे नेचुरल इम्पैक्ट से, कई बार कोई नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या सम ऑफ द अदर नेचुरल इम्पैक्ट होते हैं, उसकी वजह से
a part of the sea water gets parted away. तो सपोज दैट इफ यू, तो अगर तुम ये बैक वाटर में गए हो बोट में, तो इस एक्चुअली लाइक कि केरला तो है ही, तुम केरला जाते हो, चलो एक पर्टिकुलर उसके एक पार्ट में, एक से स्मॉल टाउन, यू वेंट एंड स्टेड ओवर देयर इन द रिसोर्ट. अब वहाँ से यू नो देन देर इज एक बीच में पूरा बैक वाटर आ जाएगा, और इस बैक वाटर के एक और तुम देखोगे तो एक छोटा सा विलेज डेवलप हुआ है, where they have schools and lot many houses, cottages, of course, not 10-storied and 2-storied and 3-storied, but they are small houses, cottages that are built on the bank of that backwater. And backwater, actually, when you see, you feel as if it's a huge ocean. It's sometimes very fearful also. उसके looks ऐसे कभी ऐसे होते हैं कि बहुत ही डरावने होते हैं at the time of rainy season, but actually it's just a backwater and a part of the sea separated away. And ये जो छोटा सा गांव डेवलप हुआ है उस बैक वाटर के एक साइड, तो वहाँ से लोग सिटी की तरफ या टाउन की तरफ काम पे निकलते हैं. तो ईच हाउस हैज इट्स ओन वेरी स्मॉल नैरो बोट वेयर 1 or 2 people कैन ट्रैवल. एंड वी हैव सीन दैट कई लेडीज जो काम पे निकलती है सुबह सुबह, लाइक अबाउट 9 o'clock 10 o'clock, एंड वी हैड बीन दैट टाइम मूविंग इन दैट हाउस बोट 4-5 घंटे के लिए. तो वहाँ पे हमने देखा कि कई लेडीज सुबह जैसे 10 साढ़े 10 बजे ये बैग, अपनी शोल्डर बैग उठाई, काम पे निकली, एंड दे हैड अ रो इन वन हैंड विच वॉज लॉक्ड अप विद अ बोट. बोट में बैठी, अपना रो लिया और ये निकल पड़ी पानी में. जैसे हम 2 व्हीलर पे निकल जाते हैं काम पे वैसे, या कार लेके निकलते हैं, या साइकिल लेके बच्चे चले जाते हैं ट्यूशन्स पे, स्कूल में. तो इसी तरह से फॉर देम दिस स्मॉल नैरो दिस टाइप ऑफ बोट इज इक्वल टू लाइक आ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ये उनका प्राइवेट होता है. देन देर आर स्कूल्स ऑल्सो, और वहाँ पे बहुत सारे वेरी स्ट्रॉन्ग बैम्बूज लगे रहते हैं. तो अगर वहाँ पे उतरना है हमें, तो यू नो दे खुद की उनकी भी छोटी सी बोट, या हमारी जो हाउस बोट होती है जहाँ पे हम थोड़े टाइम के लिए टाइम पास करने निकल जाते हैं, तो दैट दे टाई विद दैट बैम्बू सो दैट यू कैन जंप ऑन टू दैट लैंड एरिया एंड यू कैन इवन विजिट दैट स्मॉल विलेज ओवर देयर. तो बैक वाटर केरला इज फेमस फॉर. व्हेन यू गो टू श्रीलंका, हाँ नियर फ्यूचर में चले जाना वहाँ पे भी. तो वेरी ब्यूटिफुल प्लेस इज, वेरी मच सिमिलर टू साउथ ऑफ इंडिया, नो डाउट, लाइक साउथ इंडिया. और उसके इंडिया के भी साउथ में है श्रीलंका. तो नेचुरली बहुत सारे similarities you can see, similarities in the looks of the people, in the food habits, but Sri Lanka equally is awesome place to visit. तो वहाँ पे भी जो बैक वाटर्स हैं इज वेरी ब्यूटिफुल. And if you go to various other villages of Kerala, right, you can enjoy the backwater, and these are known as Kyle in local language. Learning for 1 marker. ईस्ट कोस्ट प्लेन अभी हमने किया, वेस्ट कोस्ट. अब ईस्ट कोस्ट प्लेन जो है वो थोड़ा ब्रॉड है देन द वेस्ट वन, एंड देयर इज सब्सटैंशियल, मतलब इनफ एल्यूवियल डिपोजिशन इन द डेल्टाज ऑफ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी. इट्स नॉर्दर्न कोस्ट इज नोन एज नॉर्थ सिरकार कोस्ट, एंड तमिलनाडु कोस्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. सो वंस अगेन योर MCQ कि एक ही पर्टिकुलर कोस्ट अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे बैक वाटर को हमने नाम दिया कायल इन लोकल लैंग्वेज, फिर कैसे हम वेस्ट कोस्ट को अलग नाम से जानते हैं, वैसे यहाँ पे भी नॉर्दर्न कोस्ट इज नोन एज नॉर्थ सिरकार कोस्ट एंड तमिलनाडु कोस्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. सो हियर यू कैन सी a part of Gujarat. This is our Gujarat and run of Kutch, and you can see, let me show you very clearly, this is Western Ghat. ठीक है, बहुत ही नज़दीक है हमारे बॉर्डर से. ईस्टर्न घाट तुम्हारे राइट हैंड साइड, तो ये ब्रॉड है. सी जस्ट नाउ वी रेड दैट ईस्टर्न घाट हैज़ अ ब्रॉडर प्लेन रीजन, राइट. और ये जो होगा दिस or this light color, that is our coastal region, right, coastline of submergence.
मलाबार कोस्ट, यहाँ पे मलाबार कोस्ट, दिस इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट, आंध्र कोस्ट, राइट, नॉर्दर्न सिरकार जो अभी हमने किया, दिस इज उड़ीसा पार्ट। तो ये जो एक स्मॉल पोर्शन है, राइट, आई शो यू वंस अगेन, शायद जो हैंड मूवमेंट में दिखा रही हूँ इट्स नॉट क्लियर, सो वंस अगेन योर दिस ब्लैक पोर्शन इज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, राइट। तो ये बहुत नैरो जगह है हमारे ये वेस्ट कोस्ट की, और ये जो है देखो दिस इज ब्रॉडर, काफ़ी जगह है यहाँ पे हमारे बॉर्डर से, सो ईस्ट कोस्ट इज ब्रॉडर। नेक्स्ट दिस सेक्शन ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज चिल्का लेक उड़ीसा, दिस इज पुलिकट लेक, यहाँ पे दिखाई दिया है। फिर दिस पोर्शन यू कैन सी कोंकण कोस्ट, और यहाँ से यहाँ तक है मलाबार कोस्ट, उसी तरह से यहाँ पे नॉर्दर्न सिरकार, देन देयर इज पुलिकट लेक एज आई टोल्ड यू, कोरोमंडल कोस्ट, राइट। यू नीड नॉट लर्न उत्कल कोस्ट, दैट्स ओके, जितना हमारे टेक्स्ट बुक में नाम है उतने तुम्हें लर्न करने हैं। Very clear over here, it is shown a bit, so you can go through it. Now let's move on, let's move on to islands, that is called archipelagos. This few islands in India, let's name them, जैसे दिए अंडमान निकोबार and Lakshadweep are the major islands. There are many smaller islands also in Lakshadweep, right? And these are located at some distance of केरला कोस्ट। तो लक्षद्वीप आइलैंड है, उसके ऊपर और वापिस स्मॉल आइलैंड्स हैं, एंड केरला कोस्ट से काफ़ी नज़दीक हैं। और दिस आइलैंड्स हैव अ हॉर्सशू शेप, हॉर्सशू देखा होगा कई लोगों के ऑफिस के बाहर या घर के बाहर, या ज़्यादातर हम देखते हैं तो शॉप्स के बाहर एंट्रेंस गेट दरवाजे के ऊपर बाहर वो लोग लगाते हैं हॉर्सशू शेप का, राइट। तो ये आइलैंड हॉर्सशू शेप का है, और उसको हम कहते हैं एटॉल ऑल्सो, और ये कोरल आइलैंड। अब कोरल आइलैंड क्या है? ऐसे क्रीचर्स हैं छोटे छोटे जो मरने के बाद वो वहीं पे दरिया के बेड पे, सी बेड पे डंप होने लगते हैं। द मोमेंट दे स्टार्ट गेटिंग डम्प्ड अप, तो धीरे 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 ऊपर आ जाते हैं। अब इतने वो मरे हुए क्रीचर्स बढ़ गए कि वो पानी के लेवल के ऊपर आ गए, तो वो बन गया एक आइलैंड। Such coral islands are called atolls. Very important. Learn it. Right? What are coral island? What is the other name? Atoll. What are they? They are the island which has a horseshoe shape. And Lakshadweep are small, is an island located at some distance of dash, that is Kerala coast. Now Andaman Nicobar. Andaman Nicobar island located in Bay of Bengal. मतलब तुम्हारे लेफ्ट में या राइट में? Naturally, left is what? Your left is West Coast, Arabian Sea. Your right is East Coast, that is Bay of Bengal. तो निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो ये है हमारे located in the Bay of Bengal. Here there are a number of islands, more than and is also more, and 3 are located away from Indian coast. So number of island is also more and not 3. They are located far away from Indian coast, right? तो ये कट ऑफ कर देना। Now अंडमान निकोबार आइलैंड once again located in the Bay of Bengal. यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन ये हमारे इंडियन कोस्ट से काफ़ी दूर है, मतलब कि लक्षद्वीप नज़दीक थे, अंडमान निकोबार दूर है हमारी बॉर्डर से। There are few mountain ranges also, some of which are formed due to volcanic activity. अब इनका एरिया क्या है आइलैंड का? 350 किलोमीटर्स, great importance. The only active volcano today that we have in our country in Andaman Nicobar Island is called Barren Island. Narcondam, which is very near to it, is a dormant volcano. Dormant volcano मतलब non-active, sleeping volcano, right? Now there is diversity. Diversity in the physical features of India. Every region has its own distinct characteristics. मतलब distinct, बहुत ही अलग फीचर। येट ऑल द रीजन्स आर इंटरकनेक्टेड, जैसे केरला अलग है, कश्मीर अलग, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ईच एंड एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी रीजन ऑफ आवर कंट्री
is though united as one India, interconnected but फिजिकल फीचर्स में डाइवर्सिटी है. उनके खुद की एक, हर एक स्टेट की, हर एक रीजन की खुद की पहचान है, राइट. इट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी. ऑल ऑफ देम हैव इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ प्रोग्रेस ऑफ नेशन. तो तुम ये नहीं कह पाओगे कि कच्छ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या गुजरात महाराष्ट्र का नहीं है, या महाराष्ट्र का एक गांव ले लो, या गुजरात का जैसे हमने एक पार्ट लिया कच्छ, या ले लो जामनगर, या पूरा गुजरात ले लो. तो हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे इंडिया में गुजरात का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, या केरला का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या गोवा का नहीं है, या कश्मीर का नहीं है, या सेवन सिस्टर्स का एक छोटा सा स्टेट ले लो आसाम. तो ये तुम नहीं कहोगे ओ इज सच अ स्मॉल स्टेट. नो नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. each and every state, each and every part of the state, each and every region of all the states are equally important for the progress of our country, and they are useful, right, very useful. And forest resources भी जो हमारे हैं हर एक part of our country के, वो भी equally important है. Northern fertile plain also are called storehouse of grains. अब हमारा जो देखो आइलैंड्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, लक्षद्वीप एंडमान निकोबार. फिर कोस्टल रीजन ले लो तो फिशरीज एंड ऑल हैज डेवलप्ड. प्लेटो ले लो तो मिनरल्स हमारे मिलते हैं वहाँ से. फिर नॉर्दर्न पार्ट ले लो तो हमने देखा वहाँ पे स्टोर हाउस है ग्रेन्स का, लाइक पंजाब इज कॉल्ड लाइक इज कॉल्ड अ वीट बाउल. मतलब कि बहुत वीट ग्रो होता है पंजाब हरियाणा में. जैसे मैंने कहा फॉरेस्ट कवर्स भी है नॉर्थ में. सर्दर्न प्लेटो इज रिच इन मिनरल्स. तो हमारा कंट्री का प्रोग्रेस बढ़ रहा है. मैनी रिवर्स हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर originating in the north mountainous region, which is also known for a variety of forest resource. So once again, to mark out, what is the importance of the diversity that we can see in India? तो हम कह सकते हैं कि हर एक रीजन का अपना खुद का importance है. Each region is different from the other of our country, yet interconnected, but different in its form. हर एक की खुद की पहचान है. जैसे women have women, मतलब कि जो फीमेल सेक्शन है सेम, मेन सेक्शन सेम. फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि सारे मेल सेक्शन दिखने में सेम है, उनकी आदतें सेम है, उनकी पढ़ाई सेम है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है. नो, वैसे हर एक, या एक फैमिली के 4 लोग ले लो, चलो बेस्ट एग्जाम्पल, एक फैमिली के 4 लोग, अगेन यू विल सी इट्स अ सेम फैमिली, राइट, बट पीपल आर विद डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट हैबिट्स, डिफरेंट मेंटल कैपेसिटी, डिफरेंट इंटेलिजेंसी. हर एक की खुद की पहचान है हर एक मेंबर की, फिर भी यूनाइटेडली रह रहे, राइट, एज अ फैमिली. सेम वे डिफरेंट स्टेट्स विथ इज ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उनकी खुद की पहचान. हर एक स्टेट इम्पॉर्टेंट है, हर एक छोटा गांव इम्पॉर्टेंट है हमारे कंट्री का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जैसे अब याद है नहीं तो पहले के आगे के मैप देख लेना, हमने जो बताया था. once again sorry for that drawing. Northern mountain is northern part, southern part आर्क शेप हमारे पैरेलल हिमालयन रेंजेस. यहाँ पे है पामीर नोट, राइट, ऐसा बताया गया है पामीर नोट. एंड योर वेस्ट घाट, सॉरी वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट. दिस इज योर पेनिनसुलर प्लेटो, फुल इन्वर्टेड ट्रायंगल. देन अब ये हिमालयन रेंजेस के नीचे का एक पार्ट था जो हमने कहा था नॉर्दर्न प्लेन, रिच नॉर्दर्न प्लेन. क्योंकि अब पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी वापस, बट जस्ट अ हिंट कि सारी रिवर्स जो फ्लो हो रही थी लाखों 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 साल से, करोड़ों साल से ले लो, तो वो सारा एल्यूवियल डिपॉजिट यहाँ पे डिप्रेशन में डंप करती गई और ये बन गया एल्यूवियल फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन. वहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्स ग्रो हो रहे हैं, राइट. फिर सर्दर्न पार्ट में
यहाँ पे क्या है, साउथ में डेक्कन प्लेटो एंड ऑल जो है वो दैट इज मिनरल रिसोर्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। अब आगे एक नया सेक्शन हम करने जा रहे हैं, सो अ न्यू टॉपिक एंड दैट्स रॉक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, जैसे इग्नियस रॉक, स्ट्रेटिफाइड, जिसको तुम कह सकते हो सेडिमेंट्री ऑल्सो। अब वो क्यों, तो मैंने आगे बताया है तुम्हें। मेटामॉर्फिक रॉक, तो अ composite matter, one composite matter made up of one or more minerals is called a rock, right? So your one marker, what's a rock? Composite matter made up of one or more minerals is called a rock. Rocks can be hard or soft, porous or non-porous, heavy or light in weight, right? It could be any form. Various types of rocks are formed due to different processes. अब हर एक की प्रोसीजर सेम नहीं होगी, अंडरस्टूड? कोई लंबे होते हैं, कोई टिंगे होते हैं, ह्यूमन बीइंग, नॉट टॉकिंग ऑफ रॉक्स। कई मोटे, कोई पतले, राइट? कोई गोरा, कोई काला, कोई दिमाग यूज कर रहा है, कोई आराम दे रहा है अपने दिमाग को, है ना, 4-4 महीने से। सो फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। वैसे हर एक चीज का फॉर्म अलग है, तो यहाँ पे रॉक्स का फॉर्म अलग है। तो यहाँ पे कई रॉक्स मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई लंबे हैं, कोई टिंगे हैं, कोई बहुत काम के हैं, कोई थोड़े काम के हैं। जैसे एन एग्जाम्पल, सो हार्ड एंड सॉफ्ट, पोरस, नॉन पोरस। पोरस मतलब, अब सी, हमारे स्किन के ऊपर पोर्स हैं विच यू कैन सी विथ योर नेकेड आई। नेकेड आई मतलब when I remove my specs, when you remove your specs, if at all you have, तो तुम क्या कहोगे कि नेकेड आइज। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिस इज माई माइक्रोस्कोप, बट when you need to see through माइक्रोस्कोप तो हम कहेंगे नाउ आई एम यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट। तब आइज को तुम नेकेड नहीं कहोगे। तो नेकेड आइज से तुम पोर्स नहीं देख पाओगे, राइट, ऑन द स्किन विच releases the dirt from the body, right? तो इसीलिए हम कहते हैं that we clean it off very properly। जब बाहर जाके आते हो तो धूल, मिट्टी, एक लेयर ऐसा आ जाता है पोल्यूशन का हमारे स्किन पे which you can't see, but actually there is a very minutest of that thin layer। तो वो कचरा साफ करने का, अदरवाइज हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, राइट? तो उससे हमारी जो स्वेटिंग होती है, तो कई रॉक्स पोरस भी होते हैं, कई नॉन पोरस हैं, कई वजन में भारी है, कई हल्के हैं, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो अलग अलग फॉर्म से ये बनते हैं। हर एक रॉक का बनना एक ही तरीका नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मम्मी अगर दाल बनाती है, नेचुरली मम्मी बना रही है, इट्स योर टाइम ऑल्सो टू सपोर्ट हर, टू गिव हर अ हेल्पिंग हैंड। बट नो, माई गॉड, वी हैव सो मच टू स्टडी, ये स्कूल का काम, वो ट्यूशन की पढ़ाई एंड व्हाट नॉट। तो बेचारी मम्मी भी कहेगी लालच में, ओके बेबी यू विल स्कोर मोर मार्क्स, स्टडी, मेरा काम तो मैं कर लूँगी। बट डियर, आई वुड से यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी एंड इनफ टाइम टू गो एंड सपोर्ट योर पेरेंट्स इन दिस टाइम पीरियड। कुछ नया सीख भी लो ताकि आगे जाके काम आए। ज़रूरी नहीं कि भी खाना पकाना ही सीखो, you can learn something new except your games के अलावा काफ़ी कुछ है लाइफ में सीखने के लिए। you can pick up the best time period। so अब जब मम्मी दाल बनाती है, चावल, या चावल में तो कुछ बनाना नहीं होता, पर चलो बनाते हैं पुलाव या चाइनीज़ फ्राइड राइस, जो अभी हम नहीं खाएंगे, बाहर नहीं खाएंगे, लेकिन मम्मी बनाएगी, या पिज्ज़ा एंड let's have some mouth-watering things, vada pav, pav bhaji, pani puri, and Maggi, pastas, lot many things, and cakes, right? Beautiful cakes. तो ये सारी चीज़ें मम्मी रोज़ तो एक दिन में तो सब कुछ नहीं बना देगी, but she prepares, say, at a time 3-4 things for lunch and dinner। तो दाल, सब्जी, रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें, और चलो आज एक मिठाई भी बना दी,
तो ये चीज़ें व्हेन योर मदर प्रिपेयर्स, इट्स नॉट कि एक ही चीज़ बना के अलग 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 कटोरी में डाल दिया और कहा देखो आज मैंने दाल भी बनाई, रोटी भी बनाई, सब्जी भी बनाई, और जब तुम खाते हो बोलते अरे बाप रे ये तो टेस्ट सेम ही है. इट्स द सेम टेस्ट, इट्स द सेम लुक. सो नो, हर एक चीज़ मम्मी बना रही है वो दिखने में अलग है, उसके बनाने की रीत अलग है, उसके प्रोसीजर्स अलग हैं, मतलब पूरा प्रोसेस अलग है, और टाइम पीरियड अलग है. कई चीज़ें 5 मिनट में बन जाती हैं, जैसे चावल सिंपल वाला वाइट राइस कुकर में डाल दिया तो बन गया 2 मिनट में, नॉट 2 मिनट्स, इट विल टेक 4-5 मिनट्स. सीटी बजने में तो टाइम लग ही जाएगा. या अगर मम्मी कोई मिठाई बना रही है तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, या उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, टाइम पीरियड लंबा होगा. दिस इज हाउ डिफरेंट रॉक्स आर फॉर्म्ड, राइट? सो लेट्स डिवाइड दिस. Now rocks can be divided into 3 categories, very simple, that is on the basis of their formation. Igneous, आग. वैसे हिंट मैंने कहा था पहले भी, कुछ भी चीज़ याद रखने के लिए उसका एक हिंट वर्ड, लाइक जस्ट यू कैन हैव योर ओन वर्ड्स याद रखने के लिए. स्ट्रेटिफाइड, सेम एज सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. सो लेट्स सी. इग्नियस, अब ये ज़्यादा डिटेल में तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, एज दिस वर्ड्स आर नॉट यूज एट योर पर्टिकुलर लेवल ऑफ लाइक 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में ये सब यूज़ नहीं होते. बट वेरी सिंपल, यू कैन टेक इग्नियस रॉक को बस उतना ही लेना है. स्ट्रेटिफाइड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड मेटामॉर्फिक. नो सब पार्ट्स टू बी लर्न्ड. सो लेट्स टेक इग्नियस रॉक. नाउ इग्नियस मतलब फायर, राइट? उसको हम कहते हैं आग. द इंटेंस हीट जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक. जो बहुत बहुत एक्सट्रीम हीट जो अर्थ के इंटीरियर में है उससे बनते हैं इग्नियस रॉक. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिमेन्स वेरी हॉट ड्यू टू दिस हीट. सो द मैटर हियर इज ईदर इन सेमी लिक्विड स्टेट, वो तो पता ही है मैग्मा, है ना, लाइक मैंगो मिल्क शेक रगड़ा, या तो इट्स नॉट लिक्विड मतलब वाटरी फॉर्म ये नहीं है, इट इज सेमी लिक्विड. ना तो हार्ड है लाइक अ रॉक, ना ये मैग्मा लिक्विड फॉर्म है, इट इज सेमी लिक्विड. तो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया, एक कोई बहुत ही थिक कोई मिल्क शेक ले लो, जैसे अभी मैंने कहा मैंगो मिल्क शेक, राइट? वो थोड़ा थिक बनाओ, तो जैसे पानी डालो ग्लास में से, स्टार्स फ्लोइंग. अब एक ग्लास मिल्क शेक भी डाल दो फ्लोर पे, दोनों को कंपेयर करो, डालना मत, मम्मी पीटेगी तुम्हें. लेकिन इमेजिन, तो फ्लो फास्ट नेचुरली वाटर का होगा, मिल्क शेक डजंट मूव अहेड दैट मच, इट फ्लोज बट स्लोली. तो मैग्मा इज दैट फॉर्म. इवेंचुअली व्हेन दिस मैग्मा कूल्स डाउन, मतलब फाइनली जब ये मैग्मा कूल डाउन हो जाते हैं तो नेचुरली रॉक्स आर फॉर्म. And these rocks are formed due to the effect of heat, and these are called Agni, मतलब आग, मतलब igneous rocks. अब देखो once again, मैग्मा पता चल गया, मैंगो मिल्क शेक a bit thicker form. अब ये लिखना मत आंसर में मैंगो मिल्क शेक, राइट? सेज सेमी लिक्विड, तो इसे हम कहेंगे मैग्मा जो हॉट है. यही मैग्मा कूल डाउन हो जाते हैं, बन जाते हैं रॉक्स. These rocks are formed due to the impact of heat. अब हीट की वजह से ये बने, इसलिए उसको हम कहेंगे igneous. In the formation of the Earth's crust, अर्थ के क्रस्ट का जब फॉर्मेशन हुआ तो this rocks were formed the first, that is earliest. तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी रॉक, मतलब पहला. जैसे जब तुम प्राइमरी में थे, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट स्टैंडर्ड, डायरेक्टली तुम 9th में नहीं आ गए, या डायरेक्टली डॉक्टर नहीं बन गए, या इंजीनियर, या इंटीरियर डेकोरेटर, या आर्किटेक्ट, या एनीथिंग, अ डांसर, इट कुड बी एनीथिंग. जन्म होते ही नहीं बन गए और काम पे निकल पड़े. इट्स प्राइमरी, सबसे पहला जो रॉक बना, दैट इज इग्नियस, व्हेन द अर्थ क्रस्ट वाज फॉर्म्ड एट मेनी प्लेसेस. लर्न 1 or 2 names. Rajasthan, Madhya Pradesh, South India, such rocks we can see. Igneous rocks are most solid of all the rocks.
अब जैसे तुम्हारे घर में तो है इग्नियस रॉक, पक्का है, तो बताओ कहाँ पे है इग्नियस रॉक तुम्हारे घर में? तो अब तो खुद सोच लो, वैसे मुझे तो बताना ही है। चलो, वेरी क्लोज टू वेयर योर मदर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ अ टाइम इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग? Naturally, kitchen platform. Usually most of the houses they use black color. जो प्लेटफॉर्म रहता है जिसके ऊपर खाना पकाते हैं, तो वो जो किचन प्लेटफॉर्म है दैट इज इग्नियस रॉक का पार्ट है, दैट इज ग्रेनाइट। बेस्ट एग्जाम्पल है वो इग्नियस रॉक का। और ग्रेनाइट वैसे, और हम यूजुअली ब्लैक यूज करते हैं, देर आर अदर टू कलर्स ऑल्सो, that is a bit of towards yellowish brown and one is greenish की तरफ, beautiful colors, but we mostly use black granite and it's a best example of plutonic rock, लेकिन हम लेंगे the word igneous rock. Basalt is also the type of rock. Now stratified igneous rocks they disintegrate, फिर वो टूटने लगते हैं पानी की इफेक्ट से, बिकॉज वाटर हैज़ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ टू कट द रॉक। मतलब एक दिन में से दो टुकड़े नहीं किए पानी ने, बट बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलती है, जैसे पानी का बहाव और बहुत दूसरे भी ऐसे फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से इग्नियस रॉक धीरे धीरे एक दिन में टुकड़े नहीं बनते, इट टेक्स years. These are called sedimentary rock, or you can call it stratified rocks. The broken rock material is constantly deposited in water. अब ये जो igneous rock टूटने लगे वो फिर डिपॉजिट होने लगते हैं, उसका एक अलग लेयर बनने लगा. This rock material is deposited in different layers. रॉक्स के अलग 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 लेयर्स बनते हैं. The upper layer has more pressure on the below layer. ये ऊपर का जो लेयर है, I'll show you. For example, say this is the upper layer और ये सारे उसके नीचे 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 बहुत सारे लेयर्स है रॉक्स के, राइट? तो ये जो लेयर है अपर लेयर, उसका प्रेशर इन सब पे कुछ ज़्यादा ही होगा. क्लियर? सो now once again, the broken rock material is continuously deposited, as I told you, in water. They form layers. This rock material is deposited into different layers. Upper layer has more pressure on these lower layers, and which are formed initially and are lying at the bottom. ये सबसे पहले बने तो सबसे नीचे आए, फिर उसके ऊपर और layers आते गए, and eventually rocks are formed with different layers. तो इसको हम कहेंगे stratified rocks. Examples are gypsum, limestone, coal, and coal and gypsum are obtained in Bihar and Jharkhand states. Learn it. अब देखो यहाँ पे लिखा है, sedimentary rocks are formed by accumulation and hardening of the sediment, like mud. Sedimentation कहते हैं ना, मिट्टी, धूल, कचरा, dead part of lot many other things, plants and all. तो ये जो sedimentation होता है, इकट्ठा होना, ये सारी चीज़ों का मड, सैंड, सिल्ट एक्सेट्रा का इकट्ठा होना, फिर उसका हार्ड हो जाना, एंड व्हेन इट बिकम्स हार्ड इट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक. एंड डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच आर अरेंज्ड इन लेयर्स. फिर धीरे धीरे जैसे टाइम पास होगा तो ये तुम्हें जैसे लेयर्स में दिखेंगे, राइट? यू कैन सी द लेयर्स ओवर हियर. यहाँ पे तुम्हें लेयर्स दिखाई देंगे बहुत सारे, राइट? 1 2 ऐसे. तो मैं इतने नैरो लेयर्स नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी यहाँ पे, राइट? सो these are called therefore stratified rocks, as the deposition takes place in layers. Sedimentary rocks are also called as stratified. Now metamorphic. Metamorphic, in certain peculiar condition the form, composition and other features of rocks are totally changed. कई बार रॉक्स के फीचर्स ही चेंज हो जाते हैं कई कंडीशन में, due to combined impact of two things, that is high temperature and pressure of the rocks from above. Igneous and sedimentary rocks now change into a totally new form which are called metamorphic. और इसके एग्जाम्पल्स हैं मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट, और ये ज़्यादातर हमें मिलेंगे राजस्थान में. दैट इज़ व्हेन यू गो टूवर्ड्स राजस्थान, हाईवे से जब हम गुजरात छूट रहा है, राजस्थान की तरफ एंट्री ली,
तो हम देखेंगे बहुत सारे मार्बल्स की फैक्ट्रीज हैं, स्लैब्स वहाँ पे दिखेंगे, मार्बल के मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे बेचने के लिए। तो ज़्यादातर यूज स्लैब्स हमें दिखाई देते हैं, वाइट कलर, दैट इज मार्बल। तो ये राजस्थान का एक बेस्ट एग्जाम्पल है वहाँ पे इसका मिलना। सो फॉर टुडे आई स्टॉप ओवर हियर, बट ऑलवेज एज यूजुअल अ रिक्वेस्ट दैट अभी भी हमें बहुत बच्चों के पेपर्स नहीं मिले हैं। वैसे तो मैसेज मिल ही गए होंगे, बट प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ इट you people then make it very difficult for us to provide you papers on time। मतलब कि देना है तुम लोगों को। कई बच्चे हैं जो लेट सबमिशन दे रहे हैं, कई बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, whether they are listening also or not to the videos and all। प्लीज़ वीडियोस का हाँ बाद में when I am in touch of this few of the students whom I know are still in a lazy mode, तो उनके साथ जब कांटेक्ट में रहती हूँ तो यस वीडियोस देख लिए हैं, वीडियोस देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। होमवर्क हार्डली वी हैव, दैट इज वंस आई हैव टोल्ड यू होमवर्क विल बी ऑलवेज, जितना आज करवाया उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नोट्स में मार्क कर लो, सिर्फ आज के लेक्चर का मार्क कर लो, ठीक है। उसी को रात तक लर्न करके नोटबुक में डाल दो, लिख लो विदाउट लुकिंग, लर्न एंड राइट, एंड आई बेट स्कोरिंग टॉप पे जाएगी। बट इतनी मेहनत करनी होगी। एंड देन वी से ठीक है टेस्ट अनाउंस होगी तब कर लेंगे अगले दिन, बिकॉज इट सो हैपन दैट निर्माण में अनाउंसमेंट हुई एग्ज़ाम की, फिर वापस आया कि स्कूल बंद, फिर वापस आया कि एग्ज़ाम तो लेनी है। एंड some student wanted me to move ahead with the one of the poem in the lower standard, right? अब वो बच्चे छोटे हैं 8th के, so I can't say anything, so उनको कंटिन्यूस समझाना पड़ता है दैट बच्चा अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो मुझसे करवा लो, you are enough grown up, you need not bring you need not do your learning just an hour before your school exam or tuition test। और चलो 0 तो 0 सबमिट तो कर दो पेपर, कुछ तो लर्न करके लिखो और पेपर सबमिशन स्टार्ट कर दो ऑन टाइम। क्लियर? सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, y'all are making our work a bit difficult by not providing papers on time. Thank you so much once again for not providing papers, but for being good children. And yes, study well, work hard, take care, and be in touch with us. Thank you so much once again. Thank you.